उसी खाने पे भी नहीं छोड़ रहे उसे। അപ്പൊ ഈ നാട് തന്നെയാണല്ലേ ശരി ടെസ്റ്റില് അയാൾ ജയിക്കുന്ന തോന്നിയാൽ മാത്രം इसे अकल नहीं होने की मतलब वहाँ सुनते होंगे वो माइक पे। ഓക്കെ റെഡി ഞാൻ കരയട്ടെ നോക്കട്ടെ സാർ ഒന്നും കൂടെ ചിലപ്പോൾ കരയേണ്ടി വരും. 5 മണി അത്രയുള്ള ഓഫീസ് ഹവേഴ്സ്. റോഡ് ടെസ്റ്റും എച്ചെടുക്കലും ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ തീരും. നീ സെഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അയാള് പറയുന്നതാണ് ശരിയും തെറ്റും. തന്നോട് ചോദിച്ചോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 കൊല്ലം. ഇജാതി പരീക്ഷകൾ കരിപ്പ് തീർക്കണതേ റോഡ് ടെസ്റ്റില്ല. കേറ്റത്തിൽ ക്ലച്ച് ഓട്ടിയപ്പോ 2 പൊറോ. अब है ना वैसा वाला टेस्ट है, रोड वाला टफ होता है। रोड टेस्ट तो अब है, मतलब रोड टेस्ट तो अब है। ये टफ होगा जैसा उसका ड्राइवर बता रहा था, है ना? ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता है इससे। पता नहीं मैनुअल सही से चलाएगा नहीं चलाएगा। मैनुअल कहाँ आती है? शायद इससे आती है, नहीं आती तो होगी पर हो सकता है मैनुअल की ज़्यादा आदत ना हो। ओ ये बनेगा। ये टेस्ट का ग्राउंड है। कितनी भीड़ आ रही है उसमें। ये भी लगे हैं लाइन पे, इनका भी टेस्ट होगा। अच्छा उसे भी लाइन पे लगना पड़ेगा? पता नहीं, लाइन पे लगना पड़ेगा। ऐसे सीधे डायरेक्टली वहाँ थोड़ा भेजेगा उसे। जाने दे रहे आगे, सब उसे आगे जाने दे रहे हैं पर ये शायद दोबारा से पीछे भेजेगा उसे। മോർണിംഗ് സർ. മോർണിംഗ്. अच्छा रोड सेफ्टी का पेपर ഏത് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? സാർ എന്ത് പേപ്പറിന്റെ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാറിനെ കണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം കുഞ്ഞാലി പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തവണത്തേക്ക് കണ്ണടച്ചേക്കാം. छोड़ देते हैं। അത് വാ, നോക്കട്ടെ. अलाउ तो कर दिया उसने। എല്ലാ ആപ്ലിക്കൻസിനും കസേര ഉണ്ടോ? धुआं छोड़ी गाड़ी। ओ मना कर दिया। പോകിലാകുമ്പോ പാടില്ലാന്ന്. അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ടുപോവാ. 80 ഡെസിബിലിൽ കുറവാണ്, എന്നിട്ടെടുക്കാം എച്ച്. ഒരുപാട് താൻ എന്ത് ശുദ്ധ സംബന്ധം അതെ സാറേ. ആ വണ്ടി കൊണ്ടെടുത്ത് ആ സ്കൂളിന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല, പക്ഷേ 30 ദിവസം അവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള पेपर मांगने വണ്ടി റെഡി. ഇനി ആ ശരി കൊണ്ടുവാ. कितना परेशान कर रहा है उसे वो। पुरानी गाड़ी चला रहा है। चलानी नहीं आती इससे शायद। नहीं नहीं उससे ऐसी गाड़ी की आदत नहीं ना, अच्छा हाँ वो ऑटोमेटिक चलाता है। इसके अंदर ले आने से एच एच बना रहा है।
पास तो कर दे। बना दे अच्छा इजीली। ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന്. എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം? നിനക്കെന്താ നിനക്കല്ലേ ഭ്രാന്തായിരിക്കുന്നു? വെച്ചെടുത്തത്? कुछ गड़बड़ की उसने। സർ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ഞാനൊക്കെ കണ്ടു. ഓ ഓ റീസൺ 3 എച്ച് എടുത്ത് നിർത്തിയ ശേഷം വീലുകൾ സ്ട്രൈറ്റ് പൊസിഷനിലല്ല. സി ये बैड अरे 3 रीजन हो गए। अच्छा प्रेशर आ गया ऊपर से। സാബുവിന്റെ കൊടുക്ക്. ओके कर दिया വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി. उसने तो फेल कर दिया। നെക്സ്റ്റ് കുറുവച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റോഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനിയുള്ള. എനിക്കായിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രിവിലേജും വേണ്ട. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്താ. सुनील डॉग वेटिंग पे लगा दिया। അവൻ വിടരുത്. ये पुलिस वाला बना रहा है किसी मूवी में ना। उसकी वजह से सबके समा वेट कर रहे हैं। സാറേ സാധാരണ 10-30 പേരായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് 10-58 പേരോളം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉറപ്പല്ലേ? ये बैड ഇല്ല, അവനൊരു 4 കുറവുണ്ട്. है। पुलिस वाला खुद ही उनका सपोर्ट कर रहा है। വേണ്ട. ഇനി കുറച്ച് കഴിയട്ടെ. लंच हो गया होगा। വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? गुस्सा आ गया बहुत है इसको भी। अबे എന്റെ മോനെ കഴിക്കലും കഴിക്കാതിരിക്കലും जा भी नहीं सकते, मुसीबत हो गया। കുരുവിളെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇളകി കിടക്കാണ്. താൻ ഇളങ്ങും പാസ്സാക്കി വിട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളിൽ തല്ലും. क्या कर रहा क्या है? करने वाला था? റോഡ് ടെസ്റ്റ് ഇനി മറ്റന്നാ വന്നാ മതി. ഇന്ന് സമയമുണ്ട്. अच्छा അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊന്നും തന്റെ തലയിലേക്കല്ലേ കയറി. रोड टेस्ट के लिए परसों फाड़ दिया उसने। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? नहीं चाहिए कैसे ड्राइविंग लाइसेंस? शायद आएगा नहीं वो। ഇനി ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടില്ല. കുഞ്ഞാലി, अबे अब वो नहीं कह रहा है बिल्कुल। अरे ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയൊന്നുമല്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത്. അഭിനയം കഴിഞ്ഞ RTO ഓഫീസിൽ പഴയ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് अच्छा ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസ് തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ള ये चीज़ बताया मुझे मीडिया में ना। ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി മുന്നിലുള്ളത് റോഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. സിനിമയാണ് എൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവൻ സിനിമയല്ല, അഭിനയവും ഡ്രൈവിംഗ്. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് US പോയേ മതി. ഈ ഒരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആര് തന്നെ ആയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടാമെന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാനങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ്.
സ്വാഭാവികമായും ഷൂട്ടിംഗ് തിരിച്ചോളൂ. ഇനി ഇതിനെ തുടർന്ന് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയോ കേസോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ रोने लग गया पुलिस वाला. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഇതിനെന്താ പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താൻ എന്ത് നോക്കിയിരിക്കുക? താടി കടവണ്ടിക്ക് സ്ഥലം വിട്ടോ? अबे पीछे पड़ गया उसके बैंग करके. ओ पुलिस वाले मारने लगे. अबे पुलिस वाले बचा के मुझे ऐसे. पुलिस वाले അവിടെ പോലീസുകാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ നോക്കിക്കോളൂ. पुलिस वाले कम है ना वहाँ लोग बहुत ज्यादा है. पुलिस वाले बैंग क्या देख रहे हैं? लाठी क्या नहीं कर सकते. ये देखो उसी को मार दिया. വേണ്ട, തുടരുത്. प्लीज. है कौन आ गया? अच्छा उसी का ड्राइवर. गाड़ी में बिठाएगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे. अबे जान नहीं दे रहा उसे. वो चाह रहे हैं सब छोड़े ना. उसी खाने में भी नहीं छोड़ रहे उसे. ये भी बैठ गया था गाड़ी में. चले गए फाइनली वहाँ से. कैसे भाग रहे हैं जो जॉब भी नहीं होते. ड्राइवर कैसे गुस्सा हो रहा है उसको देख के. എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്? സാറ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു. പനങ്ങാട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ. അതൊന്നും പറ്റില്ല, അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ഇറങ്ങി വിടും, അവിടെ നിന്ന് വെക്കോളാം. പുറത്തേക്ക് വരണേ. ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് ഷോൾഡർ ബാഗ് എടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ. घर छोड़ के जा रहा है ये? ഞാനിപ്പോ വരും. नहीं कपड़े फटे ना उसके. अच्छा പക്ഷെ അവരാരെ രക്ഷിക്കും? अच्छा इसकी फैमिली. अच्छा 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 बाकी हो चुकी. हाँ. ഒരാഴ്ചയായി സാറേ. അവന്റെ ഹീറോ സാറല്ലേ, ഞാനല്ലേ. फोन करा था ना क्योंकि वहाँ पहुँच जाएंगे ना लोग फिर उनके घर में. ഇറങ്ങിക്കോ. बारिश में उनकी. കുഞ്ഞാലി പനങ്ങാട്ടേക്ക് പോട്ടെ. घर तक छोड़ा. സാറ് പേടിക്കണ്ട. ഈ ആത്മാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പോയി. ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ റൈറ്റ്. सेल्फ रिस्पेक्ट ही चाहता था ना ये. हाँ क्योंकि उसने इसकी इंसल्ट की थी ना. അതിനകത്ത് സാറിന് अच्छा अच्छा ओ बैंग करके उस दिन ले लेता हो तो. लाइसेंस देने वाला था उसे. उसके गुस्से की वजह से हो गया सब गड़बड़. ഒരുപാട് തല്ല് കിട്ടിയോ ചേട്ടാ? ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും പ്ലീസ്. ഭാര്യയുടെ കൊച്ചിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് തല്ലുകൊള്ളാൻ വയ്യ. സർ
ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്. आज बोल दिया उसने वो फोटो के लिए. ऐसे हालत तो कैसे लेगा फोटो. സാർ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, വാശിക്ക് പോലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് സാർ. ബാബു ബാബു അല്ല, നീ അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഡിവൈഎസ്പി എന്നെ വിളിച്ചു തന്നു. കുട്ടേട്ടാ, സത്യമായിട്ടും ഹരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം. क्या ഞാൻ हुआ? അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. अरे उस बारे में पता चल गया होगा ना, इसने करवाया था उसे. उसे घर के अंदर भीड़ जमा हो रही है. അതിന് ഞങ്ങളും കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേ? അതെ, ये बात उसी यार. उसी के घर में आए हुए. നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ എളുപ്പം പറയും. हैं? ഇതാ പിശാചിന്റെ പരിയല്ലേ? അതെ, कुछ दिनों के लिए आ गया शायद. വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ. ഹരി, ആ ഡിവൈഎസ്പി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. കുരുളെ നമസ്തേ. ഹരി അളിയ നിനക്ക് വേറൊരു സംഭവം അറിയാം? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഴകിയ മന്ത്രി എന്ന സിനിമ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു തന്നെ. ഇപ്പോഴും ആ സിനിമയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ इसी ने तो बुलाया था कहीं. हो सकता अच्छा, इसी ने बुलाया था. എപ്പോ വന്നു? है पॉलिटिक्स के लिए शायद. इसी ने बुलाया था. अब बोलो सर, आदर ने बुलाया. ആ അതാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാനുണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞാല് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റസാക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് 1.5 മണിക്കൂർ എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എനിക്ക് ാണ് സുഹൃത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക. തുടർന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാകും. फैंस बस हो गए. उसे गुस्सा आ रहा है उस बंदे को. इंडिया की मीडिया के सामने. സർ, 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് മഹാത്ഭുതമാണ് സർ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഈ ഫാൻസ് സാറിന് ഒരു ബലമാണല്ലോ. ഫാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ തനിക്ക് എന്താണോ ഇത്ര പുച്ഛം? ഞാനൊരു ഫാൻ വിടാനോ ഉള്ളതല്ലല്ലോ ഈ ജോലി. അവരുടെ ഈ സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത് നിലനിർത്താനും പറ്റില്ല. ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നേടിയ ഒരു സ്വാഭാവിക നടനാണ് താങ്കൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തികച്ചും അസ്വാഭാവികമായ ഈ സിറ്റുവേഷൻ താങ്കൾ ജീവിതത്തിലെ അഭിനയത്തിന് അവാർഡുകൾ കിട്ടുമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ. पीछे खड़ा हो रहे हैं. എന്റെ സ്വഭാവം അഭിനയമല്ല. ദേവിയത് മാറിത്തരണം. എനിക്ക് പോകാറാണ്. കുഞ്ഞാലി വണ്ടി എടുക്കും. स्नाइपर आ गया. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. മിസ്റ്റർ, നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാനാണ്? അയ്യോ, अच्छा, इसी का गुस्सा है. इसके पास कहाँ से आया? മോസസ്. ആ മോസസിന്റെ എന്റെ അറിവിലുള്ള अच्छा ने खोया था उसका लाइसेंस. नहीं, जिसने खोया था उसका बाप ही है. अच्छा ഇപ്പോഴത്തെ നടന്മാരൊക്കെ എന്ത് നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് നൂതനാണ്. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാലോ. കിട്ടി എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है, ड्राइविंग लाइसेंस. तो तभी मुझे पता चला कि इसका टाइटल क्यों रखा गया है ड्राइविंग लाइसेंस.
उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी हुई, मेन टॉपिक वही था, ड्राइविंग लाइसेंस, किस तरह से वो हीरो यानी पृथ्वीराज वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है उन्हें। वही मतलब सब गुस्से की वजह से हुआ है ना। उसका भी ईगो था, इसका भी ईगो था, दोनों का। सूरज मोंजरा मोदू तो उन्होंने भी काफ़ी कमाल की एक्टिंग की दोनों ने। मतलब एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी थी। और भले ही फिल्म की स्टोरी बहुत वैसी है, थिन लाइन स्टोरी है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं स्टोरी में। ट्विस्ट पर ये है कि जिस तरह से फिल्म को बनाया गया है, जिस तरह से इसमें जो एक्टिंग है सबकी, और जिस तरह से इसमें मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते पर थोड़ा बहुत आते हैं, तो वो फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और कॉमेडी सीन्स भी थे बीच बीच में, तो मतलब फिल्म ओवरऑल मतलब एंटरटेनिंग बन गई थी फिर। तो बाकी फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल सी थी। एक ड्राइविंग लाइसेंस उसे नहीं मिलता और फिर उसी को मतलब हासिल करने के लिए वो क्या क्या करता है, और फिर आखिर में उससे पहले तो मतलब टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं था, पर उसे जाना पड़ता है टेस्ट देने। लेकिन बना अच्छी रखी है, एंटरटेनिंग बना रखी है, ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं बना रखी। कोई इसमें गाने भी नहीं थे शायद इस फिल्म में ना, कोई गाना आया नहीं बीच में। बाकी मूवी काफ़ी कमाल की थी है, मतलब वही स्टोरी सिंपल है लेकिन अच्छी है। मतलब इस टाइप की फिल्में ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है ना। भले स्टोरी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, भले स्टोरी में से ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ये कि फिल्म एंटरटेनिंग है, मतलब ये कि बोर नहीं करती और मज़ा आ रहा था फिल्म को देखने में। और इसमें जो कैरेक्टर हैं वो बहुत अच्छे अच्छे थे। और बाकी वही है कि रोज़ को ध्यान रखते हुए उन्हें किस तरह से अपने जॉब को बहुत अच्छे से निभाया उसने ना, सूरज मंजरा मोदू। तो मतलब उनका वैसे ये था कि वो तो लाइसेंस देने वाले थे ही उन्हें, वही ना, पृथ्वीराज को देने वाले थे लाइसेंस। जिस तरह से उन्हें पुलिस स्टेशन में आके गुस्सा किया ना पुलिस वालों पर, वो गिफ्ट के निकाल की जो हमने आपको गिफ्ट दिया था उसमें आपका लाइसेंस ही था, तो ड्राइविंग लाइसेंस वो देने वाले थे उससे। पर ये कि जिस तरह से वो गुस्सा, वही है ना, गुस्से की वजह से सब गड़बड़ हो गया। उन्होंने गुस्सा किया और उसी लाइसेंस को फेंक दिया। उन्हें पता है, तो यही है ना कि गुस्सा सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। और सब हुआ वो जो उनका दोस्त था, वो पॉलिटिशियन, उसकी वजह से सब हुआ ही। क्योंकि वो अगर मीडिया को ना बुलाता वहाँ, तो उसने आराम से जाना था और अपना जो भी कुछ है उससे मिलता हो, और जिस तरह से उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा था गिफ्ट के तौर पे, अब वो उसे लेकर चला जाता, सब कुछ बढ़िया हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। पर ये कि उसके दोस्त ने की गड़बड़ सब कुछ, उसने मीडिया को बुलाया और फिर उसी वजह से ये चीज़ इतनी लंबी चली, फिर खिंचती चली गई वो चीज़। और जो दूसरा जो एक्टर था वो बद्री, वो तो बहुत चालू था। वो क्या करता रहता था, वो पंडित से पूछता रहता था कि किस तरह से उसकी फिल्म नहीं चले, और वो जादू टोना करता रहता था उसके साथ। अपने काम पे कम फोकस था उसका। उस पे ज़्यादा था कि जो हरी है उसके मतलब कैरियर को किस तरह से धीमा किया जाए। वो मतलब अपनी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए नहीं करता था उतनी कोशिश जितना वो उसकी फिल्म को ना चलने के लिए करता था। उस फिल्म को उस जो बद्री था सुपरस्टार, तो उसकी फिल्म सिर्फ सिंगल स्क्रीन में लगती थी, इसी वजह से परेशान था वो। मल्टीप्लेक्स में सिर्फ उसकी लगती थी हरी की। नहीं मल्टीप्लेक्स ऐसा नहीं बोला था उसने, शायद ये बोला था कि जो बेकार सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ मेरी फिल्में लगाते हैं, जो अच्छे होते हैं वहाँ नहीं लगाते मेरी फिल्में। सिंगल स्क्रीन में कहा था उसने। तो मतलब ये था कि उसकी फिल्में मतलब चलती नहीं थी ज़्यादा और अच्छी नहीं होती थी उनकी, शायद फैन फॉलोइंग उसी की थी ना हरी की। बाकी फैंस भी काफ़ी पसंद करते थे उसे। वही कि फिल्म में थोड़ा गुस्सा ही हो गया वैसे दोनों के अंदर ही को, तो इसलिए बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी के साथ भी ना।
अगर आपने बिहेवियर अच्छे से नहीं किया किसी के साथ भी, कोई भी अपनी दुश्मनी निकाल सकता है। करण पहले मतलब वैसे करण सब कुछ मतलब वो ठीक करना, ठीक क्या बोल रहा मैं, वैसे करण सब कुछ ठीक करने के उसमें भी आ गया था मूड में, जिस तरह से उसके सीनियर ऑफिसर ने जब समझाया था उसी दिन ही जिस दिन वो सब हुआ था, तो वो निकाला तो उसने अपनी वाइफ से लास्ट में कि मैं ऐसे ख़त्म करने वाला हूँ इस सब को। हाँ, तो वो सब वो मतलब ठीक कर देता, उसे दे देता उसका लाइसेंस, वो ड्राइविंग लाइसेंस। पर वो उसे तब ज़्यादा गुस्सा आया ना जब उन्होंने हमला किया उसके घर पे गुंडों ने। हाँ, और उसने ये समझा कि ये हरी ने करवाया है। अब पहले तक तो उसे इतना यकीन नहीं भी था होगा, पर जिस तरह से उसने कॉल किया हरी ने उससे, अब उसने लगा ऐसा रहा था जैसे उसी ने भेजेंगे गुंडे उस टाइम। तो वो ऐसे दे रहा था ना पी के, पीने के बाद अब हमें भी ऐसे लगा कि गुंडे उसने भेजे। नहीं, मुझे लग रहा था कि भेजे तो उसी नहीं होंगे, वो जो था बद्री, क्योंकि वही चाहता था कि ये मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये सॉल्व ना हो, और जिस वजह से वो चाहता था कि इसकी फिल्म बंदी हो जाए, ये चाहता था ना वो। तो तब मुझे लग रहा था कि ये यही करो, इसी ने भेजेंगे गुंडे। पर जिस तरह से उसने कॉल किया था तो फिर ये भी लग रहा था कि कहीं इसी ने तो नहीं भेजे। पर उसने कॉल गलत टाइम पे किया ना, वो जब वो गुंडे आए उसी के थोड़ी देर बाद उसने कॉल किया। अब फिर उससे भी यही लगाया करण को कि इसी ने ही भेजे गुंडे, और तब उसने उसे और ज़्यादा लंबा खींचा। पर ये कि फिल्म है तो अगर वहीं पे ख़त्म कर देते तो फिल्म बनती कैसे फिर? वो ये रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। रियल स्टोरी पे बेस्ड होती तो आसानी से, मतलब सिंपल स्टोरी होनी थी ना, और भी ज़्यादा धीमी स्टोरी होती। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो मिल ही जाता है, पर ये फिल्म है तो जिस तरह से हायर ऑफिसर से कांटेक्ट था ना उसे रोका, तो आसानी से हो जाना था उसने काम में। बस उसी पुलिस इंस्पेक्टर को सामने रख रहे हैं। जबकि पावर तो ऊपर वालों के पास है। नहीं, पावर तो उसके पास भी है। हाँ, उसके पास भी थे, लेकिन एक तरह से ना वो होता है, प्रेशर होता है। जब हायर अथॉरिटी का प्रेशर आता है तो तब करना ही पड़ता है नीचे के ऑफिसरों को ना। यानी एक तरह से वो बात मीडिया में फैल गई थी ना, जब उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर कराता हूँ, तब उसने नहीं कहा कि मैं रिजाइन दे दूंगा। फिर अब अगर वो रिजाइन देता तो फिर और ज़्यादा फैल जाती मीडिया में बात, और फिर सब उसी को ट्रोल करते हैं, हर कोई किसी ने करवाया ये सब। तो उन्होंने एक तरह से रीज़न भी दिया हुआ था कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा था, जो करण था। नहीं, रिस्पेक्ट के लिए भी, और जो कुछ गुंडों ने उसके फैमिली के साथ किया, जिस तरह से उसके बेटे को चोट लगी। उसके बाद उसने मतलब वो माना नहीं, मतलब तब उससे ज़्यादा वो आ गया फिर। और फिर तब जाके उसने बोला कि उन्हें आना पड़ेगा यहाँ पे, और तब जाके वो सब टेस्ट वगैरह हुए ड्राइविंग के। बाकी फिल्म ओवरऑल सही है, एंटरटेनिंग फिल्म है। और पृथ्वीराज, मतलब शुरुआत में दिखा रहे थे जो पृथ्वीराज को मुझे लगा सुपरस्टार होगा, है ना, ऐसे कुछ आगे स्टोरी नहीं आएगी इस तरह से ना, कुछ ऐसा ही होगा, कुछ फिल्म से रिलेटेड होगा, लेकिन वैसे ही निकल गया था जैसे होता है रियल लाइफ में। पर ये कि मूवी वैसे जिस तरह से मूवी की एंडिंग हुई ना, ऐसा लगा जैसे मूवी की एंडिंग थोड़ा सिंपल सी हो गई। कुछ और चीज़ें होती ना, अगर कुछ और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते और थोड़ा और चीज़ें इसमें ऐड की जाती, फर्स्ट हाफ तब से ज़्यादा मज़ा आता मूवी देखने। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से थोड़ा सा पहले वहाँ पर ठीक चल रही थी फिल्म ना। हाँ, फिर लास्ट में एकदम से सब कुछ ठीक होने लग गया, और थोड़े और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते, कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। जैसे जो बद्री था जो उसको देखा नहीं, मतलब वो पुलिस ने उसके खिलाफ कुछ होने की कंप्लेन जो भी होता ना। नहीं, वो तो चलो एक चीज़ है, वो तो बात की बात है।
पर ये कि मूवी में थोड़ा और चीज़ें होती है ना, अगर जो लास्ट में मतलब इतनी इजीली अगर ये मैटर सॉल्व ना होता हाँ, तो तब ज़्यादा और ज़्यादा मज़ा आता फिल्म को मैटर को उन्होंने जल्दी सॉल्व कर दिया। तो वो थोड़ा वो लगा, मतलब लास्ट में ऐसा लगा बस नॉर्मल सा लगा। निपटाना चाहा उन्होंने इस फिल्म को। थोड़ा अगर और जैसे उन्होंने फर्स्ट हाफ में दिखाया ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर देते लास्ट में। हाँ, और थोड़ा इतना इजीली नहीं होता है मैटर सॉल्व, थोड़ा एफर्ट डाल के होता और ज़्यादा इसमें मेहनत लगती उन्हें दोनों तरफ से, तो तब ज़्यादा मज़ा आता मूवी देखने में ना। तो ओवरऑल मतलब मूवी वैसे अच्छी है। कुछ नए टॉपिक पे बेस्ड है। और इसका रीमेक भी बना था अक्षय कुमार और इमरान हाशमी थे उसमें। हाँ, पर ये था कि मतलब हमने तो मूवी देखी नहीं, पर अच्छा वो हमने नहीं देखी हुई, नहीं तो फिर हमें फिर वो आता ना, फिर उसका ट्रेलर देखा था ना, तब थोड़ा सा अंदाज आया उस फिल्म का। हाँ, उसमें वैसे ही हुआ था। क्योंकि अगर हमने देखी होती तो हम इतना एंजॉय नहीं करते इस फिल्म को, तब हमें सब पता होता है क्या होगा। तो हमने देखी नहीं थी, तो तब हमें ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।